नमस्ते सभी को। और आज इंडिपेंडेंस डे की पूर्व संध्या पर आज धारिणी जी हमारे साथ हैं। और वो देश के ऐसे लीडर के बारे में बताएंगे जिन्होंने सेल्फलेसली अपना सोचे बगैर दूसरों के लिए काम किया, और ऐसे ही लोगों के कारण आज हमें इंडिपेंडेंट इंडिया में रहने का अवसर मिला है। और धारनी जी के बारे में भी मैं ऐसे कह सकती हूँ कि वो सेल्फलेसली ऐसे स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए काम कर रही है। उनके साथ बात करके ही ऐसे मतलब मन में शांत भाव सा आ जाता है। और जब भी वो उनका सेशन होता है तो ऐसा लगता है कि हम सुन तो उनको रहे हैं लेकिन मेडिटेशन कर रहे हैं। तो धारनी जी, मोस्ट वेलकम। बहुत दिनों बाद वी आर hearing you in a session of course, after a long time, and most welcome, Niji, over to you. And very, very warm welcome to you. Thank you. Thanks, Anuradha. And so good to see everyone again. Like I was just saying, it's a very compassionate and warm group, and I really like to meet everyone online. He say. So, tomorrow is Independence Day, and it's a day to remember, all those who have worked for India and some of the freedom fighters and all वो कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं स्कूल में भी कॉलेज में भी but there are people who are actually the builders of modern India जिनका ज्यादा ड्रामा शोर गोल कुछ नहीं पीछे से शांति से काम करना कमिटमेंट से काम करना तो one of those people was who we call the milkman of India, Dr. Verghese Kurian. So Verghese Kurian ji, he was born in Kerala. He was from Kozhikode and he did his bachelor's in physics from Madras University, and then he was a mechanical engineer, and that too from I think from Madras Engineering College or somewhere. Anu, you can share later. Let me just speak and then great. Huh? So we'll share later. So Dr. Kurian, like in this group, we also want to share something, very some snippets which are special to us and what we believe in. तो डॉक्टर कुरियन was a mechanical engineer. फिर उसके बाद क्या हुआ कि he was getting a scholarship to go abroad to Michigan. पर वो स्कॉलरशिप उनको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में नहीं मिली. उन्होंने कितना ही कोशिश करी वो नहीं मिली, मगर उनको मिली डेयरी टेक्नोलॉजी में. तो ही वाज लाइक रियली डिसहार्टेंड कि ये क्या क्या मिल गया, मतलब like any other young person he will be very disheartened, but see how God plans, how things turn out, and this was perhaps the most important uh, twist in his life. So he went there to Michigan in US to study dairy technology because he got a full scholarship. He came from a ordinary middle class home. तो वहां पर वो गए तो he it was at that time the gap between the West and India was huge. मतलब कोई बाहर जाता था तो वो बोलते थे वहाँ इतनी देखो स्काई स्क्रेपर्स है, ये है, सड़कें इतनी चौड़ी हैं, यहाँ पर वो सब कुछ नहीं था. तो that time it was huge and he saw all this technology which was being used by huge giants like Nestle. And he in fact said that when his scholarship was ending, when his studies were ending, he wanted कि हम वो technology import कर लें. So Nestle and all refused. They said कि the natives, मतलब Indians, will not be able to use the technology. So perhaps कहीं ना कहीं ये बात मन में रह जाती है, ऐसी ऐसी यू नो लोग कुछ कुछ बोल देते हैं और उसी से ही that spurs us to do so many big things. So as part of his scholarship, he वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में उनको सर्व करना था जब वो वापस आए.
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको पोस्टिंग करी एक छोटी सी फार्म में गुजरात में, जिसका नाम था कायरा डेयरी फार्म। तो वहां पर ही सॉ कि हाउ द मिल्कमैन, छोटे छोटे मिल्कमैन यूज टू टेक आउट द मिल्क, देन ट्रांसपोर्ट, देन बहुत मिडल मैन होते थे। तो जो दूध वाले थे उनको तो कुछ भी नहीं मिलता था, वो मिडल मैन जिनके पास ट्रक्स वगैरह थे, दे यूज टू टेक इट टू बॉम्बे एंड सेल द मिल्क एट exorbitant prices, and the farmers were, in a bad shape, and they didn't even have money to feed the cows, buffaloes वगैरह। तो मतलब जो ये गैप था बिटवीन द दूध वाला एंड द कंज्यूमर वाज ह्यूज। और कहाँ पे इतने महंगे मिलते थे दूध, और कहाँ फार्मर को, दूध वालों को कुछ भी नहीं मिलता था। इनफैक्ट यहाँ पर इन दिस ग्रुप मोस्ट ऑफ अस आर ओवर 40-50 पर आपको याद होगा जब हम छोटे थे तो गर्मियों में पनीर नहीं मिलता था, और कई बार ऐसा होता था कि आज दूध नहीं आया, आज दूध की गाड़ी नहीं आई। तो इतना कोई स्ट्रीमलाइन नहीं था, बहुत ही बुरा हाल था। और दिल्ली जैसी जगह में, छोटी जगह में तो कुछ पता भी नहीं। और जो जैसे डायरेक्ट सप्लाई होती थी ना, उसमें इतना अडल्ट्रेशन होता, पानी मिला के और क्या क्या मिला के और दूध दिया जाता। तो एनीवे, so the seeds of the milk revolution were sown by Dr. Kurian in that small farm called Kaira Dairy Farm. तो वहां पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोऑपरेटिव बनाया। एंड एज यू नो कि जो भी जब हम नया काम करते हैं ना, जो एग्जिस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनसे हमेशा वो रहता है, मतलब देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। सो द ब्यूरोक्रेसी, द रूल्स, द मिडिल मैन, उन्होंने खूब हड़ताल करी कि ये क्या, दिस इज नॉट डन, और ये तो पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा ये सब। पर मतलब अगेन आई वुड से गॉड्स ग्रेस और and his determination. So that Kaira Dairy Farm, they started pasteurizing the milk in 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 Kaira itself. And Kaira जो डेयरी फार्म है, इट इज इन द डिस्ट्रिक्ट आनंद। तो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड ये नाम था। तो इसका शॉप बड़ा होके हो गया अमूल। So Amul started in a small way in Kaira Milk Union Limited. Slowly, the Dudwala started getting together and they started making decisions. See, otherwise क्या होता है कि कोई अफसर आके उनके लिए डिसीजन बनाता है, कोई और जैसे कोई बॉम्बे से आए तो उनको अपना इंटरेस्ट इतना, उनको ना दूसरे की बात समझ नहीं आती। So the milkmen themselves started making decisions. And slowly जब middlemen खत्म हुए तो their supply started to Bombay. बॉम्बे में जब सप्लाई स्टार्ट हुई तो खूब, और पेस्चराइज मिल्क जाता था तो वो इतनी जल्दी खराब नहीं होता। तो जब बॉम्बे में सप्लाई स्टार्ट हुई, देन दिस कोऑपरेटिव really started growing because there were so many consumers, and this model was like really looked up to कि सब लोग, सारे दूध वाले इकट्ठा एक जगह दूध को अपना जमा करें, मंडी टाइप ऑफ अ सिस्टम। देयर द मिल्क इज पेस्चराइज्ड, उसको अच्छी तरह उबाला जाता है और उसको अच्छी ट्रीट किया जाता है ताकि वो जल्दी खराब ना हो। फिर वो ले जाया जाता है इन सिटीज। पहले वो सीधा ले जाया जाता था, पूरा खराब हो जाता था, और इंडिविजुअल फार्मर्स के साथ मिडिलमैन की वो साठ गांठ होती। फिर क्या हुआ कि the farmers got so much of money that they started buying trucks, and the trucks were air conditioned, मतलब उसमें वो फ्रीजर लगे हुए थे। तो वहां पे पहले बॉम्बे में जाता था। एंड दिस आनंद मिल्क कोऑपरेटिव यूनियन, इट really grew very fast. And so Lal Bahadur Shastri was the prime minister. He inaugurated this in a big way. जो अमूल की इनॉग्रेशन हुई थी वो लाल बहादुर शास्त्री ने की थी।
एंड ही सेड कि ये जो मॉडल है ये हमको हर स्टेट में, हर रीजन में अपनाना चाहिए। तो एक बोर्ड स्टार्ट किया गया, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो उस बोर्ड ने क्या किया, उस वो रेगुलेटरी बोर्ड था। तो जैसे नॉर्दर्न रीजन में मदर डेयरी स्टार्ट किया, कहीं नंदिनी डेयरी स्टार्ट किया कर्नाटका में, ये कुछ यहाँ पर अपना राजस्थान में भी है, सारस है, सरस, सरस। तो सब जगह ना द मिल्क हैज बीन रेगुलेटेड। And do you know that today India is the largest producer of milk in the world? मतलब यूएस वगैरह को छोड़ के सबसे आगे इंडिया। So all thanks to Verghese Kurian sir, and he was a very, personality wise, he was a person who was not very steadfast, ज्यादा किसी से बोलना नहीं, ज्यादा डेडिकेटेड। एंड इनफैक्ट एक, मैं अभी जब इसके लिए मैं पढ़ रही थी तो एक व्यक्ति ने लिखा हुआ है कि वो इंटर्न आया था अमूल में। तो वर्गीज कुरियन वाज देयर, तो वो डरता था, पर वो ज्यादा कुछ बात नहीं करते थे, बस अपने काम से काम रखा, और 5:30 बजे और घर चले गए। सो नॉट दिस के बहुत बैलेंस भी था, और ही वॉज नॉट, he was able to stand up for himself. There were बड़ी occasions है जहाँ पर उनका जो मैनेजमेंट है, जो पॉलिटिशियंस है, उनसे थोड़ी अनबन हो गई, क्योंकि दिस थिंग हैज अ लॉट ऑफ मनी ना, लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ इनकम, इट्स अ ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर, और हमारे आंखों के सामने ये इतना चेंज आया है, और हमने कहीं नहीं सुना कि करप्शन हो रही है या कुछ हो रहा है या आंदोलन हो रहे हैं। मतलब इट इज सो वेल स्ट्रक्चर्ड, दिस मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस, मिल्क प्रेपरेशन बिजनेस, हाँ, इतना बढ़िया स्ट्रीमलाइन, जैसे कि नींव रख दी हो, जैसे मेट्रो की नींव रख दी है ना एक व्यक्ति ने, तो उसके ऊपर बस बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। So it is like really amazing. आजकल ना ही दूध, but कि पनीर and so many varieties of milk India is producing. आप बिग बास्केट वगैरह पे देखो, ऊपर this fat, high fat milk, cow's milk, slim and trim milk, so many varieties of milk, dahi, paneer, and chocolate and आइसक्रीम। जब हम छोटे थे तो आइसक्रीम तो मतलब वो वाली मिलती थी, आइस वाली, मिल्क विल्क नहीं होता था ज्यादा, मिल्क वाली तो बहुत महंगी होती, ऑरेंज बार वगैरह हम लोग खाते थे। एंड नाउ, मतलब we are so privileged that everything is available to us, and the milk is so nicely packed, pasteurized, date डली होती है, it's quite amazing. From these years that have gone by, I really salute this person, who has single-handedly, he had this vision of transforming the farmers' lives and bringing them, directly to consumer. So now I have a few pictures. I'll show you if Anuradha can show. So Verghese Kurian was known as the milkman of India. एंड ये है उनका अमूल का जो एड है, उसका अमूल की जो लिटिल गर्ल है उसके साथ। नाउ दिस वाज द plight ऑफ ऑर्डिनरी मिल्कमैन, अगली हाँ, इन द 1950s 60s। मतलब ऐसे ये अपना मिल्क के जो ये पतीले टाइप होते हैं, इनको लेके साइकिल पे किधर, मतलब कहाँ मोटरसाइकिल भी नहीं होती थी, कैसे लाते थे, कहाँ लाते थे, अनइमेजिनेबल। क्योंकि इतना मिल्क सड़ता था, क्योंकि विलेज से तो बाहर जा ही नहीं पाता। तो दिस वाज द plight, एंड इन बॉम्बे एट वन पॉइंट ऑफ टाइम देयर वाज अ मिल्क स्ट्राइक, 15 दिन तक मिल्क नहीं आया। तो बिकॉज फार्मर्स वर सो अपसेट कि उनको पैसे नहीं मिलते थे, सब सब कुछ तो
मिडिलमैन के पास चला जाता। नेक्स्ट। हाँ, ये है पुरानी कायरा डेयरी जहाँ से अमूल शुरू हुआ। जहाँ पर जब ये पढ़ के आए थे वर्गीज कुरियन साहब, सो ही स्टार्टेड वर्किंग हियर एज कंपल्सरी, कि भाई ये रूरल पोस्टिंग करनी है, इसलिए यहाँ पे इनका पोस्टिंग हो गई। नेक्स्ट। दिस इज लाल बहादुर शास्त्री जी, और पीछे आपको दिख रहा होगा वो सफारी सूट में कुरियन साहब है और प्राइम मिनिस्टर है, एंड दिस वाज द इनॉग्रेशन ऑफ द कोऑपरेटिव के सब लोग, सब दूध वाले मिल के, दिस इज जस्ट आइडिया के सब लोग मिल के एक जगह अपना दूध जमा करो, फिर वहां पर हम प्रोसेस करेंगे, फिर वहां से निकालेंगे, वरना फार्मर अलग अलग कुछ कुछ अपना करते रहे। नेक्स्ट। हाँ, तो वाइट रेवोल्यूशन, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन क्रॉप्स के लिए, वाइट रेवोल्यूशन फॉर मिल्क, एंड इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर contributing to 25% of world's milk production। एंड सब कुछ मतलब यूनाइटेड स्टेट्स तो सेकंड लार्जेस्ट रह गया, बाकी आगे पीछे और भी लोग। नेक्स्ट। So this is the Amul of today. Huge containers for milk. अमूल डेयरी आज जो है आनंद में ही है, वही है आनंद डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। और दिस इज द ट्रांसपोर्टेशन, इट मस्ट हैव टेकन huge amount of imagination to have these kind of trucks, and कैसे मिल्क आ रहा है, मैकेनाइजेशन से कैसे आ रहा है, भर रहा है, अमेजिंग। नेक्स्ट। Yeah, so these are the Amul ads, and he has actually set up Amul single-handedly. और इसी के बाद, he has set up these cooperatives through the National Dairy Development Board in all states or regions, बोल दो regions। तो मतलब हर जगह अब अपना मिल्क है, कोऑपरेटिव है, farmers are getting together, pasteurizing the milk and sending. Next. So much of gratitude to Dr. Kurian for transforming this place, our country, and I think that's the end. That's all. So from a place of scarcity, we have moved to a place of abundance. और इसमें कुछ नहीं है, ये नहीं है कि गाय ज्यादा हो गई, या हमने गाय को चारा ज्यादा दे दिया, ये हटा ले फिर अनु, ये प्लीज इफ यू कुड रिमूव द पीपीटी। so it's the same resources, it is the absolutely same resources, it is just that उसको ऑर्गेनाइज इतनी अच्छी तरह करा, स्ट्रीमलाइन इतनी अच्छी तरह का, वही फार्मर, वही आनंद कोऑपरेटिव, वही कंज्यूमर है, और हाउ दैट इज डन just by the ideas of a single person. So much of gratitude for this builder of modern India, and really I'm honored to speak about him. And really there is nothing much to speak because he was a very quiet man. वो ज्यादा लिखा पढ़ा नहीं, बस जो भी बुक्स है वो यही है कि about the technique. He doesn't write about himself, he doesn't write about big philosophies and all, just कि ऐसे किया फिर ऐसे किया फिर simple, life is so simple and it can transform. So that's all. थैंक यू धानी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक्चुअली अगर आपको याद हो तो बहुत बड़ी लिस्ट थी, और उसमें से अब्दुल कलाम जो थे वो सबके प्रिय थे कि बोलना चाह रहे थे, पर जिन स्पीकर को दिया गया वो उनने बोला ही नहीं। फिर
रीटा मैम ने महादेवी वर्मा जी के बारे में बोला, और धानी जी ने वर्गीस कुरियन के बारे में चुना। तो लाइक अ क्वाइट पर्सन। और मैं आनंद गई हूँ एक्चुअली, तो थैंक यू, आपने सब कुछ याद दिला दिया। और बचपन में हम लोग ये अटली बटली का वो जो एड देखते थे, अब तो पता नहीं शायद टीवी में, दूरदर्शन नहीं आता है, बट दैट वाज दी लाइक आइकॉनिक एड होते थे अमूल के। अटली बटरली अमूल, हमारे बचपन में हमने मतलब बहुत अभी ये सारे फोटोज देख के मुझे फिर से वो सब याद आ गया। तो बहुत बहुत थैंक यू। और और आई वांट टू से कि जैसे और भी कंटेम्पररीज है ना, जैसे टाटा है, और जिन्होंने ट्रांसफॉर्म किया इंडिया को, तो दे वर ऑलरेडी फ्रॉम वेरी बिजनेस काइंड ऑफ फैमिलीज। पर ये जो थे ना, ये मतलब ही वाज लाइक एन ऑर्डिनरी पर्सन, लाइक राइट। यू एंड मी। एंड जो उस चीज पे कि उन्होंने ज्यादा लिखा नहीं, तो बहुत छोटी छोटी एग्जाम्पल से उन्होंने मतलब बाकी शायद लोगों ने आनंद में हमें बताया कि पहले तो वो एक नॉर्मल जैसे पर्सन होता है, फैक्ट्री में जाने वाले पर्सन, उनके साथ ही काम करते थे। फिर ये आया कि एक मशीन बनाई जाए जो पैस्चराइजेशन की हो, लेकिन फिर वो उसमें कुछ टेक्निकल इतनी प्रॉब्लम आ गई कि कुछ उसका कोई सोल्यूशन नहीं हो पा रहा था, लाइक बिग मशीन्स। अब तो वो उतना आनंद में उतनी बड़ी बड़ी वो पैस्चराइजेशन वाली ऑलमोस्ट ऑयल कंपनी की तरह चलता है वो। हम्म। लेकिन जो फर्स्ट मशीन जो जिसका वो इनॉग्रेशन हुआ, दैट वाज अ लाइक कम शब्दों में कहें तो इट वाज अ रिवोल्यूशन इन मैकेनिक्स। लाइक वो मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते थे ना, तो या उन्होंने वो अपना क्या बोलेंगे ब्रेन लगाया टू मेक दैट मशीन वर्क फॉर दैट पैस्चराइजेशन। so because I read it many months back, so बट वो उन्होंने फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो अपनी जो भी काबिलियत थी, खैर वो डेयरी वो के। मैकेनिकल इंजीनियर थे, हाँ। but he didn't get the scholarship. He has done mechanical engineering, but हाँ। then he got scholarship for dairy. So he then shifted to dairy, और वो knowledge भी use की, like you are saying, है ना? एंड देन वो अमूल बटर का भी, और ये जो पैस्चराइजेशन करके भी फार्मर्स को नहीं मिल पा रहा था ज्यादा पैसा, क्योंकि सब वो दूध को कैसे मतलब जैसे सीजन में ज्यादा हो गया, नाउ इफ वी हैव से 100 लीटर्स ऑफ एक्सेस, तो उसको क्या करेंगे, तो अमूल देन ही क्रिएटेड दिस थिंग कि जो वो स्प्रे पाउडर बनाता है। पाउडर बनाना। वो हाँ। फिर जब वो पाउडर बनाया उन्होंने, तब उसके मिल्क प्रोडक्ट्स बनाने की भी एक मतलब एक फर्स्ट स्टेप वाज पैस्चराइजेशन, देन टू गेट दैट कोऑपरेटिव थिंग, देन टू गेट दैट स्प्रे मिल्क, लाइक पहले अमूल स्प्रे भी बोलते थे उसको, कि मतलब दूध से उसको पाउडर बना देना। एंड देन व्हेन ही स्टार्टेड प्रिजर्विंग द every drop of milk which came to the factory, then it became profitable. And then the next step towards his, I think maybe he had retired by then, कि हमारा जो मार्केट है गुजरात से महाराष्ट्र तक ही था, मतलब यूजुअली अमूल का भी इतना जब नहीं हुआ था, then he started maybe he or whatever the board NDDB or whatever that board, they He was started chairman of NDDB. giving selling the अमूल प्रोडक्ट्स टू विदेश, जैसे सिंगापुर या मतलब एयरलिफ्ट करके जब वो भेजने लगे, उसके बाद जो अमूल का जो ब्रांड का नाम था, वो देश भर में तो फैला ही, लेकिन विदेशों में भी फिर उसकी जो नाम फैली। तो इसके लिए वो जैसे 1921 एंड मे बी ही इज वर्किंग थ्रू 1950 टू 1980 90 तक वो काम करते रहे, जो 2012 तक मेरे को लगता है जब उनको शायद जो भी अवार्ड वगैरह मिले, तो वो तो फिर उन्होंने he saw like from that 1 liter milk to like billion-liter milk, तो वो उनकी जर्नी रही है। एंड सेल्फलेस जो आप बोलते जा रहे हैं, तभी उनका जो दिमाग में वो जो छवि आती है कि फ्रॉम एन ऑर्डिनरी लाइक लाइक एन इंजीनियर, he became this kind of a person who worked for the people of आनंद। आनंद से वहां शुरू होके, और फिर अम, वो जो उनकी जो कहानियां हैं, क्योंकि वहां के जो लोग काम करते हैं उनसे मैंने थोड़ा बहुत कहानी सुना, तो इतना पूरा जो एक फैक्ट्री के आने से द होल दैट एरिया बिकेम प्रॉस्परस।
धानी जी का शायद इंटरनेट चला गया। एनीवे, सो आई विल कीप क्वाइट, बट वेलकम गीता एंड मंजू जी। या ऐसो हम लोग एज एन एग्जाम्पल ही मतलब वर्गीज कुरियन के बारे में बोल रहे हैं, बट उस समय के सारे लोग, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री हो या कोई भी हो या टाटा हो, उन्होंने सेल्फलेसली काम किया। इसी के लिए आज हम लोग इस तरह के समृद्ध प्रॉस्परस देश में रह रहे हैं। मुझे मतलब ये कल की इंडिपेंडेंस के लिए आज ये बोलना जरूरी लग रहा है। They were real visionary. At least Korean sir was भाई ऐसे एकदम मॉडेस्ट बैकग्राउंड से आके उन्होंने जो है एकदम रिवोल्यूशन ला दिया. So unless he would have been like something extra, जो नॉलेज थी उनकी, जो ज्ञान था, उसको उन्होंने राइट डायरेक्शन में चैनलाइज किया. एंड मुझे तो यही लगता है कि he was something different, that he brought such a big change in the country. तो अब कहना नहीं, अब तो वर्ल्ड में हो गया, ऑल ओवर फैल गया है. So that was it's really commendable. वो अब हम लोगों के लिए तो, इंडियंस के लिए इट्स रियल बिग प्राइड की बात है. थैंक यू मंजू जी। और शायद धानी भी बाद में करेंगे, पर आपके लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप यूएस भी जा रही है, जो हम आपने बताया। और बहुत अच्छा लगा कि सब लोगों की जो खुशी की जो इन्फॉर्मेशन आती है ना, कि आप की बेटी वहाँ बेटियों के साथ रहेंगे, तो बहुत अच्छा लगा। और अब सारे त्योहार भी आ रहे हैं, तो हम साथ मिलकर, कल एक त्योहार है, फिर रक्षाबंधन एक त्योहार है, तो हम लोग सब मनाते रहेंगे साथ में। थैंक यू। तो धानी जी अगर वापस आती है तो 1-2 मिनट और रुकते हैं, नहीं तो ये सेशन कंप्लीट करते हैं। रिमेम्बरिंग, या धानी जी इज बैक। So we were talking about celebrations, और he has made Indians proud, ये बोल रहे थे मंजू जी। आई एम सो सॉरी, मेरी ना लाइट सुबह से जा रही है, तभी मैंने तुम्हें भेजी थी वो पीपीटी, और मैं वो भी नहीं कर पा रही थी. या मतलब आई एम सो, आई मिस्ड, यू हैड सो मच नॉलेज टू शेयर. मैं बाद में पूछ लूंगी, आई डोंट वांट यू टू रिपीट, बट Yeah. I am so impressed by by such a simple person. He has not written about himself at all. He has only written about how he helped dairy and all, जो भी उनकी टेक्निक है, तो अमेजिंग है. एंड वहां पर जो आप बोल रहे हैं डिफरेंस, यहाँ पर ये है कि व्हाट इनोवेशन ही डिड। मैं बस इतना ही, मतलब द डिफरेंस इज, वहां पर जो है जैसे एक मल्टीनेशनल, एक से सपोज टाटा की कंपनी को लोग बेच रहे थे, पर यहाँ पर जो आपने वो सेंटेंस बोला ना, कि यहाँ पर द फार्मर स्टार्टेड मेकिंग डिसीजंस, कि हम लोग 20 रुपया लीटर देंगे या 25 रुपया लीटर देंगे। तो दो दो मतलब जो पावर है, वो जो जिसने उस पर काम किया है, उस पर वो पावर आने से ये एक बहुत बड़ी मतलब उपलब्धि थी। एंड दैट होल एरिया, दैट आनंद बिकेम प्रॉस्परस। एंड देन इन टर्न, देन गुजरात का वो जो एरिया था, सौराष्ट्र का, जहाँ पर सिर्फ दूध ही होता था, वो एक किस्म से इंडस्ट्रियल जो एक एरिया बन गया, और पूरी प्रॉस्पेरिटी, आई मीन लाइक वहां पर थाउजेंड्स, एटलीस्ट 1000 फैमिली स्टार्टिंग में ही प्रॉस्परस होने लगे। एंड देन 1000, व्हेन 1000 पीपल बिकम, देन 1 लाख, एंड देन लाइक दैट, वो जो ट्रिकल करके जो वो आनंद का पूरा एक किस्म से हार्ट ऑफ आनंद इज दिस थिंग। बट देन पीनट्स और वो सब बाकी सब जो चीजें वहां पर आई, तो क्योंकि मैं जब आनंद में गई हूँ, तो इसके लिए मैंने वहां के लोगों, और ये जो आपने वो गेट बताया ना, इट्स लाइक जैसे हम बोलते हैं ना कि मंदिर के दर्शन करना, तो वो सब वैसा ही है। वहां पर लोग है ना जाते हैं, और वहां पर जैसे दिल्ली भ्रमण वगैरह होता है कि दिस इज द गेट, यहाँ से ऐसे, वो एक किस्म का क्या बोलते हैं, स्मारक जैसा है जाने के लिए, कि वहां पर लोग जाते हैं. And he did it single-handedly. That is the thing to be मतलब appreciated. और उनको worship करने वाली मतलब we must worship him, like Yeah.
मतलब Yes. इतना कॉन्फिडेंस और डेडिकेशन है ना. Exactly. और एंड इन द स्मॉल थिंग्स ही एवरीवन वांट्स टू हैव बिग जॉब्स एंड दिस एंड दैट, Yeah. और इतने ये आईएएस लोग और ये सब, पर देखो फ्रॉम डेयरी टेक्नोलॉजी ही हैज ट्रांसफॉर्म्ड. Right, रियली. right, right. And of course rules and regulations बनाने के लिए उसकी जो so not only that his technological brain, then his administrative brain, मतलब जो एक wise person होता है ना, first technology, then to maintain वो जो boards को चलाना, then state wise boards को बनाना, that is why it's called white revolution. एंड द पर्सन हु अंडरस्टैंड्स, ही अंडरस्टैंड्स ना. वरना कोई आउटसाइडर आ जाता है ना, उसको समझ ही नहीं आता कि नुएंसेस क्या है. सो ही न्यू द ग्राउंड लेवल से काम किया है उन्होंने. आई थिंक और इसमें उन्होंने मिडिल मैन को जो है नहीं रखा था, डायरेक्टली इन लोगों का गवर्नमेंट से वो था, तो इसलिए दैट्स हाउ इट प्रॉस्पर्ड सो वेल. या पहले द मिडल मैन यूज्ड टू टेक अवे ऑल द मनी ना. एग्जैक्टली. यस. एक मूवी थी मंथन, वो इसी पर थी. गिरीश कर्नाड और स्मिता पाटिल. हाँ, तो उसमें जो है वो ये बताया जाता है कि हाउ ही मोटिवेटेड द वुमेन टू सेंड टू ब्रिंग देयर मिल्क, इवन इफ इट इज हाफ लीटर, 1 लीटर, 3 लीटर, जो भी है. फिर सुबह वो पूरा एक पूरी फिल्म ही उसके बारे में है कि वो गांव-गांव जाके उन्होंने स्त्रियों को बताया कि आप इस तरह से कीजिए. हाँ, मैंने वो देखी नहीं है, मैं देखूंगी. शाम बेनेगल भी होता है मैम. शाम बेनेगल ही इज अनदर विजनरी. ही डज रियली, बहुत कम बनाते हैं मगर जो बनाते हैं वो मीनिंगफुल होता है. अब पद्मा जी आप कुछ कह रहे थे, सॉरी. नहीं, उसका वो गाना भी बहुत सुंदर होता है. वो हर वक्त वो DD1 में आता था, याद होगा आप सबको. मेरे घर अंगना ना, कुछ ऐसा सा था ना. हाँ दूध हाँ, की नदियां बहे. बहुत ही सुंदर. और वहां पर वो आनंद का जितना भी था सब आ जाता था, मतलब लिखा होके कि इतने विलेजेस से इतने लीटर हर रोज इतने यहाँ से आते हैं, ऐसे ऐसे सप्लाई होता है. पूरा DD1 तो पूरा नॉलेज का भंडार है. अभी भी याद है वो गाना, बहुत ही अच्छा लगता था. एक्चुअली मुझे वही सब याद होगा क्योंकि मैंने इतना तो पढ़ा नहीं है, मैं तो वही सब याद होगा, तब मैं वहीं से बोल रही हूँ. और जितना मैंने आनंद में जाकर सुना था, मैं उसके बेसिस पे बोल रही हूँ. मैं वहां गई थी और वहां के लोगों जो फैक्ट्री में काम करते हैं उनसे मैंने बात की थी. मतलब जस्ट लाइक दैट, इट वाज नॉट, मैं तो दूसरे काम के लिए गई थी, बट हमारा होटल जो था ये इस दरवाजे को देखता था. तो तब फिर हम वहां से बात किए, तो बहुत अच्छा, मतलब ऐसा लगा कि बहुत लाइक कि कैसे मतलब हम लोग एक जगह पे रह रहे हैं जो कि नेशनल वो है, नेशनल हेरिटेज जगह है. तो स्कूल के बच्चों को ले जाना चाहिए. हमको लेके गए थे मदर डेयरी फैक्ट्री. आई वाज इन दिल्ली में पढ़ी थी मैं, तो वहां पतपरगंज में मदर डेयरी फैक्ट्री है. माय गॉड, इट इज अमेजिंग. कैसे मतलब अच्छा, ये मिल गई आपको. मैं तो देखूं तारी बाट, दिन ना बीते ना ही रात, कोने कहूँ दिल की बात. मैं तो थाकी रे
ये गाना शायद आप बोल रहे थे, पर वो जो डेटा है वो शायद डॉक्यूमेंट्री थी, वो जो आपको याद आ रही है, जो दूरदर्शन पे आती थी। हाँ, बहुत अच्छा लगा। लेकिन आज का टॉपिक बहुत ही थैंक यू धरनी मैम, थैंक यू। अरे थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू अनुराधा। मतलब कितना सो मच ऑफ शेयरिंग हैपन टुडे ना, इट्स नाइस टू बी इंटरेक्टिव। और मुझे तो, मैं तो थोड़ा बहुत पढ़ा था, बट आई वाज ऑलवेज सो इम्प्रेस्ड बाय दिस पर्सन। बड़ा वैसा हाँ, फेस है ना, बहुत ही अच्छा सीरियस लगता है, सा फेस है। और ही अच्छा लगता है हम्म, इनका। और एक टाटा, टाटा जी, हाँ जी टाटा, उनका लाइफ भी बहुत अच्छा लगता है मैम। वो भी इंडिया की विजनरी में एक है गणित जी। मतलब इंडिया की डेवलपिंग कंट्रीज जो गिना जाता है उसमें उनका भी बहुत हाथ है। उनका भी हम्म बहुत अच्छा लगता है। पढ़ी हूँ थोड़ा बहुत, उनका एक छोटा सा बुक मेरे पास था, तो वो सब मैं पढ़ी थी। तो ये उन एक वेबसाइट है जिसमें अटली बटली के पूरे 1976 से 2015 तक ऐड भरे हुए हैं। वाह। हम्म, इसके किसी भी रियली है फोटो पे आप एक्चुअली। करेंगे तो इसकी आपको ऐड मिलेंगी। अच्छा, मैं ये डाल दूंगी ग्रुप में। हाँ डाल दीजिएगा, हाँ, बड़ा डाल मजा आ रहा कितनी था ये सब बढ़िया, बचपन में ना, कितनी ये सब बढ़िया। दिखने में बड़ा, क्योंकि उस वक्त हम्म, कोई भी न्यूज आती थी तो उसका वो ad देते थे। हाँ वो ऐड में अभी भी मैम, अभी भी न्यूज़पेपर में हाँ, जो भी करंट टॉपिक होता है उसका, हाँ। आपको अमूल का वो पिक्चर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा आज का करंट टॉपिक ये है। आज भी वही वो बनता है। हाँ, वो आर के लक्ष्मण का वो आता था, मतलब हाँ, क्या बोलते हैं, कॉमन कार्टून, है, कार्टून 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 और और ये एड। हाँ, अच्छा लगता है नहीं। हम्म, राइट। और हमने रियल, मतलब वी आर ऑल्सो फॉर्चुनेट ना, हमने ये सब चेंज होते हुए देखा है अपनी देखा लाइफ है, में, रियली है ना। रियली मैं भी वही सोचती हूँ मैम। आर के लक्ष्मण की स्टोरीज जो हम देखे हैं DD1 में, स्वामी, और उनके में हमारे 10th और 12th में उनके रिटर्न बहुत सारे नॉवेल्स भी थे हमारे सिलेबस में, मैं अलग से पढ़ी भी हूँ। मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा। वन मस्ट रीड आर के लक्ष्मण सो नॉवेल्स, तो बहुत ही अच्छा लगता है उनका। और रस्किन बॉन्ड का एक में, रस्किन बॉन्ड का तो एक्सलेंट है, बहुत ही सुंदर। तो कभी आप, रस्किन रस्किन बॉन्ड का एक स्पेशल ये है कि वो मसूरी में रहते हैं, तो उन्होंने वो वहाँ के उत्तराखंड के बागों के बारे में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। मैम वो जैसे रहते हैं ना, उनका मैं एक बार वीडियो देखी थी उनका सब, मतलब ये कहीं पे DD1 में या कहाँ पे वो उनका, वो तो वो एडप्टेड है, वो एक एक जन को, एक फैमिली को एडप्ट किए हैं, वही उनका फैमिली है। वो मसूरी के उनके वो खिड़की से वो देखते हुए जो रहते हैं ना, मैं बोलती ऐसे जगह पर कोई रहेगा तो अपने आप राइटर बन जाए। मैं अपने बच्चों को जगह, बताती हूँ कि देखो, मतलब समटाइम्स दे यंगस्टर्स दे वांट टू गो अब्रॉड। मैं बोलती हूँ देखो रस्किन बॉन्ड को देखो, ही हिमसेल्फ इज वहां पे छोड़ के अपनी फैमिली वापस आए, नहीं। आगे, हाँ, और अपने इनके लिए, जो हेल्पर है उनके उनकी पूरी फैमिली को अडॉप्ट किया है। हम्म, मैं देखी हूँ। और रस्किन बॉन्ड का कभी किसी को होगा तो द ब्लू अम्ब्रेला पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा लगता है स्टोरी, द ब्लू आज बहुत ही अम्ब्रेला। नॉस्टैल्जिक हो गया, जबकि मुझे लगा था हम ब्लू लोग अम्ब्रेला। पेट्रियोटिक प्रोग्राम कर रहे हैं। सारा अरे नॉस्टैल्जिया हो फाइनली, गया। फाइनली, फाइनली 5 मिनट सब फ्रीडम्स डे के बारे में एक एक लाइन बोलिएगा, क्योंकि ये अच्छा होगा। फ्रीडम के बारे में एक एक लाइन। हाँ, तो फ्रीडम का देखिए, मतलब क्या 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 मायने रखता है फ्रीडम, मतलब फ्रीडम आप एक्चुअली मैं ना बस फ्रीडम, ये मतलब मुझे तो समझ नहीं आता, पर मेरी दादी और पापा लोग बोलते थे कि मेरे दादाजी ने, मेरे नाना जी ने फ्रीडम स्ट्रगल में काम किया है। तो उनकी स्ट्रगल मतलब कि सिर्फ ये कहना कि कोई अंग्रेज हम पे हुकूमत नहीं करेगा, एंड लाइक यू नो कि वो भारत देश छोड़ो, जो गांधी जी बोलते थे, वो बोलते थे सोमवार को व्रत रखो। तो वो सारे लोग सोमवार को व्रत रखते थे कि भाई हम जो हैं कि हम किसी की हुकूमत में नहीं रहना चाहते, जस्ट कोई एडमिनिस्ट्रेशन जब वो सारी चीज
हमारे हक में नहीं हो रही है। अब भी पता नहीं हक में हो रही है कि नहीं, बट वो एक ऐसा जज्बा था कि एवरी यूथ, चाहे छोटा बच्चा चाहे ओल्ड पीपल, एवरीबडी वांटेड जस्ट वन थिंग, कि भारत स्वतंत्र हो। तो इसके लिए हम तो स्वतंत्र भारत में पैदा हुए, तो उसकी इतनी वो क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंस जो है वो शायद मैं मतलब उतना समझ नहीं पाई हूँ, या समझ रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। बट अपना झंडा लहराना, जैसे कोई खिलाड़ी होता है तो वो ये नहीं बोलेगा कि मैंने यूके के लिए गोल्ड मेडल खरीदा, या कोई साइंटिस्ट होता है तो उसका जो नोबेल प्राइज है वो यूके को या यूनाइटेड किंगडम को, रानी को ना मिले। तो वो मतलब जैसे कि हमें एक किस्म से अपने घर पे अपना अधिकार होना, तो ये बहुत ही एक किस्म से एक इमोशनल स्ट्रगल रहा है। एंड यस, इट वाज लाइक ये मैंने अपनी दादी से और पापा से ये सब स्ट्रगल्स की बातें सुनी है। एंड दैट होल जनरेशन, आई थिंक 2 generations सैक्रिफाइस्ड। कितने लोग जेल गए, कितने लोगों को मतलब यू नो लाइक इट वाज कंसिडर्ड लाइक अ पीसफुल स्ट्रगल, बट कितने लोगों ने मतलब एक किस्म से रिवोल्यूशन भी किया, लाइक यू नो दिया। जान दी अपनी। और खैर मेरे तो दादाजी जेल में भी रहे, तो फिर पूरी मतलब 1-2 जनरेशन ने उसका वो क्या बोलते हैं चुकाया, उसको एक सैक्रिफाइस किया कि फुल टाइम वही काम करना है। तो या सो वी आर लिविंग इन दैट जो फ्रूट्स उनकी 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 एफर्ट्स से हमें मिले हैं। तो ये फ्रीडम है टू से कि हाँ, आई एम इंडियन, आई वाज बोर्न इंडियन, एंड वी लिव इन अ फ्री इंडिया। हम लोग तो वेरी ऐसा नाइस। सोचते हैं ना कि हम लोग ने जो सुना और जो पढ़ा उससे ही रुआं खड़ा हो जाता है, एंड देन वी फील द वैल्यू ऑफ फ्रीडम। मगर जिन लोगों ने सच में उस स्टेज को जिया और जिन लोगों ने उसके पीछे अपना जो है क्या क्या नहीं गवाया, तो उनके बारे में सोच के लगता है कि नहीं, बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है हम लोगों को इस स्थिति में आने के लिए, इस फ्रीडम को सच में वो प्रैक्टिकली जीने के लिए हम लोग को जो मिला, हम लोग उसकी वैल्यू उस तरह से नहीं समझ सकते क्योंकि हम लोगों ने उसको फेस नहीं किया है। सिर्फ सुनकर ही जो है उसके बारे में जो है एक पिक्चर बना लिया है। बट सच में उन लोगों ने जलियांवाला बाग वगैरह वो सब कहानियां सुनो, वो करो, तो उस समय लगता है कि सच में इट वाज लाइक रियल, उनके लिए कितना बड़ा जो टॉर्चर रहा होगा, हर स्टेप पे कितना बड़ा टॉर्चर रहा होगा। सो हम लोगों के लिए तो बहुत हम इमेजिन नहीं वरदान कर सकते, जी। पर इमेजिन साइकोलॉजिकली बहुत देर लगी है। आई थिंक अभी तक हमारी जो जनरेशन, आई थिंक नेक्स्ट जनरेशन थोड़ी फ्री है, पर हमको अभी तक हमारी जनरेशन को ना कि साइकोलॉजिकली थोड़ा सा हम दब के रहते हैं, हाँ हाँ है ना। इट्स बिकॉज ऑफ, अब आई थिंक ये जो चेंजेस आए हैं, मतलब कि मैं बहुत साल दूरदर्शन में काम किया है मैंने। ओके सो यू नो जैसे न्यूज रीडर्स वगैरह होते थे, तो उनको बोलते थे बिल्कुल ऐसे परफेक्ट इंग्लिश बोलनी है एंड ऑल, और थोड़ा मजाक उड़ाते थे, थोड़ा इधर उधर हो गया। पर फिर ना देखा कि ऑडियंस वाज रिसीविंग दोज न्यूज रीडर्स बेटर, जो कि थोड़ी सी गलतियां करते सिंपल थे, क्योंकि वो ना समझ आता था लोगों को। हाँ वरना हाँ वो बहुत ही स्टाइल से कोई बोलता ना, समझ ही नहीं आता। ओरिजिनलिटी नहीं रहती थी। ये तो अब हुआ है ना, कि पहले तो हम लोग मतलब वो आप सही बोल रहे हैं, पहले हम लोग फिजिकली फ्री हुए, फिर मेंटली फ्री होने में तो शायद वो उसमें फिर पूरा 50 years या अभी 75 years भी चले गए हैं, क्योंकि मेंटली फ्री नहीं हो पाए। वो बोलते थे पहले एपिंग वेस्ट, अब तो खैर वो टर्म नहीं यूज होता, बट वो टर्म यूज होता था जब मैं कि एपिंग वेस्ट, हर चीज में एप, मतलब कि वहाँ वो ही सही है, वो ही सही है। नकल करना उनका जो है ना, पेन अलग करके वो कर रहे हैं तो वही अच्छा है, वैसा वो वाला फेज भी था
बीच में इट वाज सो मच, वी वर सो वेरी बैडली ओवरपावर्ड बाय देम कि उससे अपने को अभी देखिए ना, हम लोग यहाँ अभी भी इंग्लिश जितनी ज्यादा प्रिवेलिंग है उतना हिंदी को आने में कितना समय लग रहा है। पीपल, बच्चों को हम देखते हैं, अगर कोई ऑप्शन होता है दे जस्ट स्किप हिंदी, नहीं भैया हिंदी नहीं चाहिए, जब फ्रेंच ले लेंगे, वो ले लेंगे, लेकिन अभी भी ये एटीट्यूड है। So it will take very long for them to realize। हम लोग को तो ये लगता है मैम कि हम लोगों ने तो फिर भी काफी कुछ हम लोग इमेजिन करते हैं, सोचते हैं और उसके बारे में, उनके पेन के बारे में वो करते हैं, लेकिन जो आगे वाली जनरेशन है, आई डोंट नो हाउ मच डू दे relate to the real agony, real struggle that this generation have gone through। हमारे बड़े उन लोगों ने जो सफर किया वो उसको उस किस तरह से उसको एसेस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क, द वे थिंग्स आर गोइंग। But you see how the world is changing. अभी तो यूके का प्राइम मिनिस्टर वाज इंडियन ओरिजिन। अब देखो यूएसए में भी जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है वो बिल्कुल कमला, मतलब शी लुक्स इंडियन, वो वैसे बट अमेजिंग रियली। जी पद्मा जी, आप शायद कुछ बोल रहे थे। नहीं मैम, ऐसे ही इन सभी को 78th इंडिपेंडेंस डे का बहुत बहुत बधाई। और इस दिन में जितने भी सोल्जर्स हमारे इंडिया के लिए और बहुत कुछ कुर्बानियों का सबका हम याद कर रहे हैं, और उनकी वजह से ही आज हम इतने अच्छे एक स्वतंत्र और कह सके तो एक सेफ और एक सिक्योर इंडिया में सांस ले रहे हैं। सांस ले रहे हैं। हाँ, आज भी जितने भी लोग बॉर्डर पे, जितने भी सैनिक, उनके फैमिली को छोड़ के, उनके भी फैमिली हमारी जैसी ही है, हमारी जैसी अटैचमेंट्स हैं, और लेकिन वो सब हमारे लिए, सिर्फ हमारे लिए वो बॉर्डर पे अभी भी हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए जागते रहते हैं। और उन सभी को सलाम, और मेरे भारत माता को बहुत बहुत सलाम। इस आज के दिन में एक बात जरूर कहूंगी, जब राकेश शर्मा रॉकेट पहली बार स्पेस में गए तो उनको पूछा गया, तब शायद प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थे, 84 शायद, हाँ 84 में। तो उन्हें कहा गया कि भारत कैसे दिख रहा है, वो आंसर देते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। तो मैं आज भी जब ये लाइन बोलती हूँ ना, मुझे इतना अच्छा लगता है। और जहीं पर भी इंटरनेशनली और नेशनली, जहीं पर कहीं पर भी वो नेशनल एंथम बजता है, या हमारा फ्लैग जब एक सेकंड में के लिए भी उड़ता है ना पूरा आकाश में, आसमान पे, तो ऐसे लगता है इतना गर्व, ऐसे लगता है कि मुझे बहुत कुछ मिल गया। वो सबसे, ये सब भारतीय का एक गर्व भरा क्षण रहता है। और भारत का जो ये फेस्टिवल है, तो सिर्फ 15 अगस्त नहीं, हर रोज हमें उनका सेक्रीफाइसेस का याद करना चाहिए, और याद करते हुए उनका सेक्रीफाइस का वैल्यू भी करना चाहिए। क्योंकि अगर हम उनका वैल्यू नहीं करेंगे तो ये जो फ्रीडम मिला है इतने सेक्रीफाइसेस के बाद, इस फ्रीडम का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। बस सभी को वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस। थैंक यू दानी। थैंक यू दानी मैम, अनुराधा मैम, मंजू मैम, पद्मा मैम, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, इतना कुछ आज सुनने को मिला मैम। अमूल से लेकर हम फ्रीडम फाइटर तक पहुंच गए। अमूल माय फेवरेट मैम। आज भी हमारे घर में अमूल स्प्रे खाते हैं, अमूल का बटर आता है, अमूल आइसक्रीम आता है, अमूल के हम सब फैन हैं। बचपन से आज तक हम अमूल ही खाते हैं।
और लास्ट ईयर मैंने भी अमूल उसने से पहले स्पून से खाना अच्छा लगता है पाउडर। अभी भी मुंह में डाल के रखते हैं मैम अमूल स्प्रे का 1 चम्मच। तो वही मैं बोल रही हूँ, अमूल का वो पाउडर मुंह में डाल के रखना बहुत अच्छा लगता है। अभी तक अच्छा लगता है। और लास्ट ईयर मैंने प्रोजेक्ट किया था मेरी लड़की का अमूल स्प्रे के फैक्ट्री के बारे में। सभी फ्लैशबैक हो गया मुझे, जैसे आपने सभी फोटो वगैरह दिखाया, तो मुझे कितना मेहनत करके फार्मर्स के लिए, हमारे मिल्क प्रोड्यूसर के लिए इतना इवोल्यूशन हुआ, इतने हमारे लिए इतना अच्छा हुआ। नहीं तो अभी हमारे पास इतने वेराइटीज कैसे आ पाता अगर कोई स्टैंड ही नहीं लेता हमारे लिए। तो कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। और फ्रीडम फाइटर्स के हमारे लिए उन लोगों ने यस, कितना डेफिनेटली। कितना सहा है। और उनके बारे में जब भी स्टोरी सभी सुनाए, उनको कैसा कैसा पनिशमेंट दिया जाता था, उनके हाथों का और पैरों का नेल सभी निकाला जाता था मैम। और उसमें वो लोग नमक और मिर्ची भी डालते थे। उनको फांसी देने के लिए 2 पेड़ों को खींच के लाया जाता था और उनको बांध दिया जाता था हाथ और पैरों को, ताकि वो दोनों तरफ दो, जब भी वो पेड़ जाते थे वो दो दो साइड हो जाता था। वो कितना पेनफुल रहा होगा। ये सभी हुआ है उन लोगों के साथ, और उन्होंने सहा हमारे लिए। बिल्कुल। ये सभी हमने पढ़ के बड़ा हुए हैं मैम। कभी कोई बुक से, कोई ये से। हमारे बच्चों को तो आधे चीजें पता भी नहीं है, इतना वही मैं कुछ कह रही हूँ। उन्होंने सहा हमारे लिए। इसीलिए उनको बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड दिल से। आज हम उनके वजह से हम शांति से पीसफुली फ्रीली इधर रह पा रहे हैं। बिल्कुल। सभी को जय माता दी। जय जय भारत माता दी। माता की जय जय। भारत माता, भारत माता की जय। थैंक यू चलो फिर, मैम। जय थैंक यू, जय थैंक यू। हिंद, जय जय भारत, हिंद, जय सभी जय को हिंद, हिंद। happy हैप्पी थैंक यू, थैंक इंडिपेंडेंस। यू।